Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to study our lecture number 36 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have started working on objects, while in this lecture, we will continue our programming practices using multiple objects. Let's start from a simple program. Write a class with 3 data members to store 3 numbers and write down 3 member functions: get data, sum and show data. This member function get data will be used to input 3 numbers. Sum will be used to calculate the sum of these numbers, and show data would be used to display the sum of these numbers. So within the class, we would have member data for 3 numbers, and we would have 3 member functions: get data, sum and show data. And we have to use this class for 3 objects. So let's start. We have a class test, and here we have a member data A, B, C and S, and this member data of type int is declared as private, mean it would be only accessible within the class. Outside the class, this member data would not be accessed. And we have declared public 3 member functions: get data, sum and show data. These 3 member functions are declared as public. So in the first member function, we will input the value of A, B and C. We will calculate the value sum A plus B plus C, and we have a member function show data. This would display the value of S or the value of sum. So get data would be used to input 3 numbers, sum would be used to calculate the sum, and show data would be used to display the value of sum. So within this class that ends over here, we have 3 member function 1, 2 and 3, and this is our member data. Member functions are declared as public and member data is declared as private. So this program continues. Main, this is the class test, and obj1, obj2 and obj3 are the objects of this class. Because we have to use this class for 3 objects, so we will declare 3 objects obj1, 2 and 3 for this class test. तो जब हमने 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, obj1 के लिए मेमोरी A, B, C और S की सेपरेट रिजर्व होगी, obj2 के लिए A, B, C और S की मेमोरी सेपरेट रिजर्व होगी, और obj3 के लिए इस मेंबर डाटा की मेमोरी जो है वो सेपरेट रिजर्व होगी. तो obj1 की मेमोरी अलग है, obj2 के लिए ये मेमोरी अलग होगी और obj3 के लिए ये मेमोरी सेपरेट रिजर्व होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑब्जेक्ट 1, obj1 के लिए गेट डाटा कॉल होगा. ये वाला फंक्शन obj1 के लिए कॉल होगा. A, B और C की वैल्यू इनपुट होगी. एंड अगेन obj2 के लिए सेम मेंबर फंक्शन आप कॉल करेंगे, दिस वन. एंड सिमिलरली obj3 के लिए भी आप ये मेंबर फंक्शन अगेन कॉल करेंगे. तो गेट डाटा वुड बी कॉल्ड फॉर obj1, obj2 एंड obj3. लेकिन डिफरेंस ये है कि obj1 डॉट गेट डाटा जब आप कॉल करेंगे तो इसमें A, B और C की वैल्यू सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे जाएगी. obj2 के लिए जब आप इसे कॉल करेंगे
तो ए, बी और सी की वैल्यू सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे जाएगी, और OBJ3 के लिए ये मेंबर फंक्शन जब कॉल होगा तो ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे जाएगी। सो तीनों ऑब्जेक्ट्स में ए, बी और सी जो है ये सेपरेट रहेगा। तो जब आप OBJ1 के लिए सम कॉल करेंगे तो जो OBJ1 में आपने ए, बी, सी की वैल्यूज दी थी वो उनका सम कैलकुलेट करेगा। जब OBJ2 के लिए सम कॉल करेंगे तो यही फंक्शन OBJ2 वाली वैल्यूज का सम कैलकुलेट करेगा, और फिर जब OBJ3 के लिए सम कॉल करेंगे तो यही फंक्शन OBJ3 वाली वैल्यूज का सम कैलकुलेट करेगा। सो फंक्शन सेम है, लेकिन वैल्यूज इनमें हर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से डिफरेंट वैल्यूज इसमें जो है वो कैलकुलेट हो रही है। और जब आप शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो OBJ1 के लिए शो करेंगे तो वो उन्हीं वैल्यूज का सम डिस्प्ले करेगा जो आपने OBJ1 में दी थी, और जब आप OBJ2 के लिए शो डाटा कॉल करेंगे तो ये उन्हीं वैल्यूज का सम डिस्प्ले करेगा जो आपने OBJ2 के लिए इनपुट की है, और फिर जब आप OBJ3 के लिए शो डाटा कॉल करेंगे तो ये उन वैल्यूज का सम डिस्प्ले करेगा जो वैल्यूज आपने ऑब्जेक्ट 3 के लिए दी हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलहदा मेमोरी है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलहदा मेमोरी है, और ऑब्जेक्ट 3 के लिए सेपरेट मेमोरी रिजर्व हुई है। इस वजह से ABC की वैल्यूज OBJ1 में सेपरेट हैं, OBJ2 में सेपरेट हैं, और OBJ3 में सेपरेट हैं। सो दैट इज़ वाई जब हम उनके फंक्शंस कॉल करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द सेपरेट मेमोरी लोकेशंस वो उनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करता है। इसका आउटपुट चेक करें। ये देखें, OBJ1 में हमने 3 नंबर्स एंटर किए, 10, 20 और 30, और फिर OBJ2 के लिए गेट डाटा फंक्शन कॉल किया तो उसमें जो नंबर एंटर किए वो डिफरेंट दिए हमने, 40, 50 और 60, और OBJ3 के लिए जो 3 नंबर्स हमने एंटर किए दैट इज 70, 80 और 90। और जब आपने OBJ1 का सम डिस्प्ले किया दैट इज 60, बिकॉज 10, 20 एंड 30 द सम वुड बी 60। OBJ2 के लिए जब हमने शो डाटा कॉल किया और सम कॉल किया तो वहाँ पे 40, 50 और 60 द सम वुड बी इक्वल टू 150। एंड सिमिलरली OBJ3 के लिए जब हमने शो डाटा कॉल किया तो वहाँ पे चूंकि नंबर 70, 80 और 90 थे, दैट इज़ वाई उनका सम जो है वो 240 आया। तो OBJ1 वाले का रिज़ल्ट अलहदा आया, OBJ2 वाले का रिज़ल्ट अलहदा है, और OBJ3 का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने सेपरेट आया। लेट्स डिस्कस एन अदर प्रोग्राम। Write a class circle with one member data as radius. Write 3 member functions, get radius, calculate and display, and use this class for 2 objects. तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है जिसमें एक मेंबर डाटा होगा आपका रेडियस, और 3 मेंबर फंक्शंस होंगे, गेट रेडियस, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। गेट रेडियस का वैल्यू, रेडियस की वैल्यू इनपुट करेगा। कैलकुलेट का फंक्शन जो है ये आपकी कैलकुलेशंस जो है वो करेगा। फॉर एग्जांपल आप एरिया कैलकुलेट करें या सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशंस करेगा। और डिस्प्ले का जो मेथड या फंक्शन है, जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। और हमने ये जो क्लास बनानी है ये 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये क्लास है हमारी सर्कल, इसमें हमने मेंबर डाटा जो लिया वो रेडियस जो हमने इनपुट करना है, एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो हमने कैलकुलेट भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। तो ये तीनों जो हमारे पास मेंबर डाटा है इसकी टाइप हमारे पास क्या है, प्राइवेट। हमने इसको एक्सेस स्पेसिफाई किया, टाइप इनकी फ्लोट है और एक्सेस स्पेसिफायर इनका प्राइवेट है। इसका मतलब यह है कि रेडियस, एरिया और सरकमफ्रेंस आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। जबकि मेंबर फंक्शंस जो हैं गेट डाटा, कैलकुलेट और शो डाटा,
इनको पब्लिक डिक्लेयर किया है, इसका मतलब यह है कि ये मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं। तो गेट डाटा का फंक्शन क्या कर रहा है जी, रेडियस की वैल्यू इनपुट कर रहा है। कैलकुलेट का फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर रहा है। और शो डाटा का फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया और सरकमफ्रेंस को डिस्प्ले कर रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए इसे करना है। क्लास नेम इज सर्कल और दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, C1 एंड C2। ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने C1 और C2 रखा है। तो C1 के लिए गेट डाटा कॉल हुआ, तो C1 के लिए रेडियस की वैल्यू इनपुट हुई। सिमिलरली C2 डॉट गेट डाटा, तो C2 के लिए रेडियस की वैल्यू इनपुट हुई। अब C1 डॉट कैलकुलेट करेंगे, तो C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एरिया और सरकमफ्रेंस की वैल्यू सेपरेट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू कि आपने उसमें C1 में रेडियस की वैल्यू क्या दी थी। और C2 के लिए जब कैलकुलेट कॉल करेंगे तो C2 के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि जब आपने C2 के लिए गेट कॉल किया था तो उस वक्त आपने रेडियस की वैल्यू क्या दी थी। तो जो रेडियस की वैल्यू होगी C1 के लिए, उसी के मुताबिक उसका एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा, और जो रेडियस की वैल्यू C2 के लिए होगी उसी के मुताबिक उसका एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा। उसके बाद C1 डॉट शो डाटा, तो आप चेक कर सकते हैं कि जब शो डाटा आप कॉल करेंगे C1 के लिए तो ये रिजल्ट आपको दिखाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू हैव गिवन फॉर C1 रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस। और फिर C2 के लिए जब शो कॉल करेंगे तो ये आपको जो C2 में आपने रेडियस की वैल्यू दी थी उसके मुताबिक एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो डिस्प्ले होगा। तो रिजल्ट चेक करें, एंटर वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे आपने रेडियस की वैल्यू C1 के लिए 10 दी और C2 के लिए जब कॉल किया तो रेडियस की वैल्यू 20 दी। अब C1 के लिए रेडियस सेपरेट है और C2 के लिए रेडियस सेपरेट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त मेमोरी एलोकेट होती है। तो C1 के लिए इस मेंबर डाटा की सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई है और C2 के लिए इस मेंबर डाटा की सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई है। तो C1 में जब रेडियस आपने एंटर किया 10 और C2 के लिए जब आपने रेडियस एंटर किया दैट इज़ 20। तो जब आपने C1 के लिए शो डाटा का मेथड कॉल किया तो वहाँ पे एरिया जो है वो आपका 314 और सरकमफ्रेंस 62.799, ये आपका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू C1 के लिए 10 दी थी। और जब आपने C2 के लिए यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो C2 में चूँकि आपने रेडियस की वैल्यू 20 दी थी तो C2 के लिए सर्कल का जो एरिया है वो 1256 कैलकुलेट हुआ और सरकमफ्रेंस जो है वो 125.599 कैलकुलेट हुआ। तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अकॉर्डिंगली सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट होंगी। तो जो आपने C1 के लिए रेडियस दिया था दैट वाज 10, तो 10 के हिसाब से आपकी जो है वो एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हुआ। और जब आपने C2 के लिए रेडियस की वैल्यू दी दैट वाज 20, तो C2 के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो सेपरेट कैलकुलेट हुआ और डिस्प्ले हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि C1 के लिए आपका ये जो मेंबर डाटा था ये सेपरेट था और C2 के लिए आपका मेंबर डाटा सेपरेट था, जबकि आपने सेम मेंबर फंक्शंस कॉल करके सेपरेट मेमोरी लोकेशंस पे वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली। ओके जी। तो इसी चीज़ को अब जब हम जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे कैसे करेंगे, राइट अ क्लास विद 3 डाटा मेंबर्स टू स्टोर 3 numbers, write 3 member functions get data, sum and show data and use this class for 3 objects using Java। तो जावा में हमने क्या करना है कि जी मेंबर डाटा लेना है हमने 3 नंबर्स के लिए और फिर 3 मेंबर फंक्शन बनाने हैं गेट डाटा, सम और शो डाटा। तो गेट डाटा में हम 3 नंबर्स की वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करेंगे,
सम में उनका सम कैलकुलेट करेंगे और शो डाटा में जो सम है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। और ये वाली क्लास जो है वो हम 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ये गेट डाटा का फंक्शन है। यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो हमने इनपुट की उसी तरह से बफर रीडर स्ट्रीम के ज़रिए। और फिर सम का फंक्शन जो है, या मेथड आप जावा में कहेंगे, तो वो तीनों का सम कैलकुलेट कर रहा है और फिर तीनों का सम डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप मेन फंक्शन में या मेन मेथड में 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, एक obj1, दूसरा obj2 और obj3। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो आपका मेंबर डाटा है ए, बी, सी और एस, ये सेपरेट मेमोरी लेगा। obj1 के लिए मेमोरी सेपरेट होगी ए, बी, सी की, obj2 के लिए सेपरेट होगी और obj3 के लिए सेपरेट होगी। तो यहाँ पे हमने obj1 के लिए गेट डाटा कॉल किया, तो नंबर हम एंटर करेंगे, फिर obj2 के लिए गेट डाटा कॉल करेंगे, अगेन नंबर एंटर करेंगे, और फिर obj3 के लिए गेट डाटा कॉल करेंगे और अगेन नंबर एंटर करेंगे। तो फिर जब obj1 के लिए सम का मेथड कॉल होगा, तो जो नंबर आपने obj1 के लिए एंटर किए थे उसी के मुताबिक सम कैलकुलेट होगा। सिमिलरली obj2 के लिए जो नंबर दिए थे उसके मुताबिक सम कैलकुलेट होगा, और obj3 के लिए जो आपने नंबर दिए थे उसी के मुताबिक जो है वो सम आपका कॉल होगा और कैलकुलेट होगा। तो आप जब इनकी वैल्यूज़ को शो करवाएंगे शो डाटा से, तो जो obj1 वाले नंबर्स थे उनका सम सेपरेट डिस्प्ले होगा, obj2 वाले नंबर्स का सम सेपरेट डिस्प्ले होगा, और obj3 वाले नंबर्स का सम जो है वो सेपरेट डिस्प्ले होगा। इसका आउटपुट चेक करें। ये देखें, obj1 में हमने जो नंबर्स दिए थे वो 10, 20 और 30 दिए। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमने नंबर 40, 50 और 60 दिए। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए नंबर हमने 70, 80 और 90 दिए। तो जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सम कैलकुलेट किया तो दैट इज़ 60, 10, 20 एंड 30। और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे ये नंबर्स थे तो इनका सम 150 बन रहा है। और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे ये नंबर्स थे तो इनका सम आपके पास ये बन रहा है। तो चूँकि ये सेपरेट मेमोरी लोकेशंस पे नंबर्स थे तो इस वजह से इनका सम जो है वो सेपरेट कैलकुलेट हुआ है और ओवरलैप नहीं हुआ। तो अब ये वही प्रोग्राम जो आपने C++ में देखा है कि रेडियस की वैल्यू इनपुट करें और उसका एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना। तो ये क्लास हमने बनाई टेस्ट, उसमें फिर रेडियस, एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो डिक्लेयर किया ऑफ टाइप डबल, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपका इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पे आप जो है वो रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे, कैलकुलेट का मेथड जो है वो एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेगा, और शो डाटा का मेथड जो है वो एरिया और सरकमफ्रेंस को डिस्प्ले करेगा। तो गेट डाटा जो है ये रेडियस की वैल्यू इनपुट कर रहा है, कैलकुलेट जो है वो एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर रहा है, और शो का मेथड जो है ये दोनों वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट के लिए इसको करना था, तो इस वजह से C1 और C2 जो है 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास टेस्ट के। तो पहले C1 के लिए गेट डाटा का मेथड कॉल किया और फिर C2 के लिए गेट डाटा का मेथड कॉल किया। तो C1 के लिए गेट डाटा कॉल करते हैं तो रेडियस की वैल्यू इनपुट करता है, और जब C2 के लिए गेट डाटा का फंक्शन या मेथड कॉल करते हैं तो वो अगेन रेडियस की वैल्यू एंटर करता है। लेकिन C1 के लिए जो रेडियस की वैल्यू होगी वो सेपरेट होगी, और C2 के लिए रेडियस की वैल्यू जो है वो सेपरेट होगी। तो जब आप C1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो C1 का एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो सेपरेट कैलकुलेट होगा, और C2 के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो सेपरेट कैलकुलेट होगा। और सिमिलरली जब आप C1 को शो डाटा कॉल करेंगे और C2 का शो डाटा कॉल करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो आपने C1 में रेडियस की वैल्यू दी थी उसी के मुताबिक उसका एरिया और सरकमफ्रेंस डिस्प्ले होगा, और जो C2 में रेडियस की वैल्यू दी थी उसके मुताबिक उसका एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा। तो ये इसका आउटपुट चेक करें। C1 के लिए रेडियस 10 दिया था और C2 के लिए जो रेडियस है वो 20 दिया। तो C1 के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस ये आया, और C2 के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस आपके पास ये आया। तो चूँकि सेपरेट मेमोरी लोकेशंस पे थे इसलिए उनकी वैल्यूज़ जो है वो सेपरेट डिस्प्ले हुई और कैलकुलेट हुई।
जबकि सेम मेंबर फंक्शन उन्होंने जो है ना वो कॉल की। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।